Assalamu alaikum students. Yesterday we studied about airborne diseases and waterborne diseases. Today we are going to study about foodborne diseases, animal-borne diseases, and the last one, transmission of diseases through direct contact. Direct contact. So first of all, foodborne diseases. ठीक है? Okay. Any food which contains pathogens. Any food which contain pathogens is called contaminated food. What? Contaminated food. Contaminated. स्पेल करने के लिए उसके सिलेबल्स कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर है. वैसे वर्ड है आपका contaminated. Contaminated food. ठीक है? Any food that contains pathogen is called contaminated food. ठीक है? The pathogens of some diseases are transmitted through contaminated food. The pathogens of some diseases are transferred or transmit, ठीक है, into the humans through contaminated food. यानी जब भी कोई हेल्दी पर्सन कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो पैथोजेंस उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे. ठीक है? On eating such type of food, these pathogen enter human body and cause disease. ठीक है? और डिजीज कॉज करेंगे. Pathogens of some diseases are present in contaminated food. ठीक है? Whenever a healthy person eats or consume the contaminated food, ठीक है, humans get these pathogens and they become the sick ones. ठीक है? They get the disease. For example, there are some diseases which are transferred through food like cholera, hepatitis. ठीक है? This is caused by a bacteria, this is caused by a virus, and typhoid, which is also caused by a bacteria. ठीक है? Then comes the animal borne diseases. Animal borne diseases. Animal borne diseases, as the name indicates, that these diseases are transmitted through animals. ठीक है? Animals, the most common one is mosquito. ठीक है? Which diseases are caused by mosquito? Can you name any disease which is caused by mosquito? Very good. One is malaria and other is dengue fever. Good. ठीक है? Dengue, this is the common disease right now. This is happening in our societies right now. Okay. Some animals also transmit pathogens. Pathogens, the microorganism which cause diseases in animals and humans, are called pathogens. ठीक है? So some animals also transmit pathogens from one human to another human. बात क्लियर हो रही है? There are some animals which can transfer pathogens from one human to another human. For example, when a mosquito bites or sucks blood, यही काम है ना, ब्लड सकिंग करना मॉस्किटोज का. ठीक है? बाइट करे या सक करे किसी डेंगू पेशेंट का या मलेरिया पेशेंट का, पहला जो उसका होस्ट होना चाहिए वो हमेशा पेशेंट होना चाहिए अगर वो ट्रांसफ़र करे. ठीक है?
मॉस्किटो है उसने किसी पेशेंट को, किसी डेंगू पेशेंट को या मलेरिया पेशेंट को बाइट किया है, ब्लड सक किया है, ठीक है, और देन, ठीक है, इसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, ठीक है, या उसका ब्लड सक करता है, वही मॉस्किटो, द सेम मॉस्किटो, ठीक है, तो वो जो पैथोजन एक पेशेंट के ब्लड में थे वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है टू द हेल्दी पर्सन. व्हेन मॉस्किटो बाइट्स एंड सक्स ब्लड ऑफ अ पेशेंट ऑफ मलेरिया और डेंगू, इट टेक्स पैथोजन्स फ्रॉम दैट पेशेंट, ठीक है. अब ये उसके ब्लड में डेंगू वायरस था, ठीक है, मलेरिया के लिए जो पैरासाइट था वो था. अब जैसे ही इसने ब्लड सक किया, उस ब्लड के साथ पैथोजन भी इस मॉस्किटो के अंदर आ गए, ठीक है. जब ये मॉस्किटो जिसके अंदर पैथोजन्स प्रेजेंट है, व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, इट ट्रांसमिट दोज पैथोजन्स टू दैट हेल्दी पर्सन. देखिए, एक पेशेंट था मलेरिया का, डेंगू फीवर का, उसके ब्लड में, ठीक है, पैथोजन्स प्रेजेंट थे. एक मॉस्किटो आया, उसने क्या किया, उसने इस पेशेंट को बाइट किया, ब्लड सक किया. अब ब्लड के साथ जो पैथोजन थे वो भी मॉस्किटो के पास चले गए. जैसे ही ये मॉस्किटो जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो जो उसने उससे पैथोजन लिए वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देगा और वो हेल्दी पर्सन भी एक पेशेंट बन जाएगा. क्लियर है? दैट्स हाउ दे ट्रांसफर द. Then comes the last one, the transmission of disease through direct contact. अब हमारे पास है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव फ्लू और कफ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, अब मैंने छींक, कोई भी आप में से कोई बीमार है, किसी को फ्लू है, आप छींकेंगे, ठीक है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप हाथ फ़ौरन से अपने मुंह पे रखेंगे. अब आपने उस हाथ को वॉश किए बगैर इस पेंसिल को पकड़ लिया, ठीक है. अब कोई भी आपका फ्रेंड वो ड्यूरिंग क्लास आपसे शेयरिंग करता है, कहते हैं कि मुझे ये पेंसिल चाहिए, आपने उसको पेंसिल दे दी. जब वो पकड़ेगा तो क्या आपके फ्लू के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी पेंसिल पे नहीं लगे होंगे? क्या वो उसके हाथों पे नहीं लगे होंगे? क्या वो आप जो हाथ है अपना वो अपने फेस को साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं करेगा? ठीक है, तो इस तरह से भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, आपको फ्लू था, ठीक है, आपने मतलब कफिंग हुई आपको, आपने जर्म्स आपके हाथ पे लगे हैं, आपने जाके हैंड शेक कर लिया अपने फ्रेंड के साथ. ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट यही है कि आप जो एक पेशेंट है, ठीक है, उसके साथ कोई हेल्दी पर्सन जाके हैंड शेक करता है, उसकी जो यूज्ड चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड आर्टिकल्स को, ठीक है, तो आप उनको टच करते हो. ठीक है, some diseases are transmitted by shaking hands, or by touching articles. ठीक है, टचिंग आर्टिकल्स दे यूज़, कोई भी चीज़ जो वो यूज़ कर रहे हैं आप उसको टच करोगे तो आपको ऑब्वियसली वो जर्म्स, वो पैथोजेंस मिलेंगे. ठीक है, फिर वही एग्जांपल हमारे जो डेली लाइफ में आजकल प्रेजेंट है, विच इज़ कोविड-19. ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, और फ्लू है हमारी, और हेपेटाइटिस है. ठीक है, ये वो डिजीज़ हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.